request you, sir, to please come and inaugurate the program. Of it can impact people's livelihood. World Toilet Day is a day to raise awareness and inspire action to tackle the global sanitation crisis. It is in fact a topic often neglected and shrouded in taboos. Today, many people are struggling to stay well and keep their children alive and work their way to a better future. Toilets play a crucial role in creating a strong economy as well as improving health and protecting people's safety and dignity, particularly women and girls. To begin with the program, I would like to call Shivangi, a student of Sulabh School Sanitation Club, to give an introduction on World Toilet Day. Good morning to all of you. On the occasion of World Toilet Day, myself Shivangi, along with my fellow Sulabh School Sanitation Club members, wish to convey my heartiest congratulations and best wishes to the honorable dignitaries present here. The members of the School Sanitation Club feel proud and privileged to be a part of the campaign Health Begins from Toilet. I would like to extend a warm welcome to the student members of our partner schools, and I would like to sincerely thank all the gathering present here on the occasion of World Toilet Day. I am extremely thankful and grateful to Honorable Dr. Bindeshwar Pathak, who has always stood by us as the torchbearer. Though he is not here with us today, but we all are extremely obliged to him. Now, our main task is to stimulate national government, international organization, and regional and global agencies to take coordinated action to meet the school sanitation and hygiene education goals as enshrined in the Sustainable Development Goal targets for water and sanitation. Sanitation, we know, is an unpopular subject. It is a very private matter, and public discussion about toilets, hand washing, personal hygiene could be very challenging. But that is all we all as a whole are trying to do. Every year, World Toilet Day is celebrated under a theme, and this year's theme is Toilets and Jobs. It focuses on how toilets play a crucial role in creating a strong economy, as well as improving health and protecting people's safety and dignity, particularly women's and girls. Now, within that scope, we decided to mark World Toilet Day by conducting various competitions for schools that are our alliance partners. I am delighted to be with my Sulabh family again, and also with so many respected dignitaries. Once again, I thank our gracious hosts, the Sulabh International Social Service Organization, and we look forward to making great stride while we work for sanitation and hygiene education in India. Thank you and have a great day ahead. May I request Honorable Shri SP Sir to please come and share his views on sanitation. लोग, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, अभी लड़की ने बड़ी बड़ी बातें कही, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। सवाल ये है, सुलभ के लिए ये दिन बहुत ख़ास है, इसलिए कि सुलभ का जन्म ही शौचालय से हुआ था। ये वो आंदोलन है जो शौचालय से शुरू होता है, शौचालय ही में ख़त्म होता है। हम विलायत अमेरिका के तमाम बातें करते हैं, लेकिन शुरू है शौचालय से
और ख़त्म होगा वही शौचालय से। आप कुछ कर लें। प्रश्न ये है कि आज के 45 साल पहले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आरा के एक टॉयलेट के गड्ढे के अंदर खड़ा होकर कहे कि शौचालय बड़ा ज़रूरी है, इसको बनाओ, स्वास्थ्य को बचाओ, देश को बचाओ। उनकी बात कोई सुना नहीं। कहा कि ब्राह्मण आदमी शौचालय की बात करता है, इसके मंजर की बात करता है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? आज दिमाग उनका 45 साल का पहले ख़राब था। तो पैसा था, 500 रुपया नहीं था कि ले सके, 500 को उधार लेने के इनको एक IAS अफसर ने कहा तब मिला। आज वो आदमी की बात जो है, मोदी जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश कह रहा है, विदेश कह रहा है, आपके रुपए के नोट के ऊपर लिखा गया है। वो आदमी की जिसकी बात सुनी नहीं जाती, आज आपका नोट पे लिखा गया कि शौचालय हमारा लक्ष्य है। वो आदमी जो बिना पैसे का आदमी खड़ा होकर कह रहा था, उसकी बात नहीं सुना, आज नोट पर आ गए। आपके जीवन के, हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। तो क्यों बना शौचालय? कंजम्पशन एंड एक्सक्रीशन। जब से आदमी पैदा हुआ तब से शौच कर रहा है। आप कुछ कर सकते हैं, खाना बिना रह सकते हैं, लेकिन शौच के बिना नहीं रह सकते। तो जब एडम एंड ईव पहले दुनिया में पैदा हुए तो एडम ने कहा ईव से कि देखो ये फल खाना नहीं तुम, नहीं तो पाप हो जाएगा। महिला थी, भूख लगी होगी, खा लिया, पाप हो गया। और तब से शौचालय का सिलसिला शुरू हुआ। जब से मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ तब से शौचालय शुरू हुआ। अब इतिहास नहीं लिखा गया तो ये थोड़ी कहानी नहीं थी। कहानी बहुत सारी नहीं लिखी गई लेकिन इसका मतलब तो कहानी ये तो नहीं, कहानी नहीं था। शौचालय की कहानी नहीं लिखी गई इसलिए कि शौचालय अच्छा चीज़ नहीं माना जाता था। इसको काम करने के लिए उस आदमी को दे दिया गया जो गरीब था, अपमानित था, पैसे नहीं थे, मजबूर था, जीत लिया गया लड़ाई में, उनको काम दिया गया। और समाज का सबसे पीछे वाली जगह दिया गया। उनके पास कपड़े नहीं थे, लत्ते नहीं थे, वो नहीं थे। समाज आपका गंदा रहा। अगर आप उसको कपड़े लत्ते दिए होते, जैसे आजकल हम लोग मोटर गाड़ी पर चढ़ के बोल के अंग्रेजी बोल कर उनको समझाते हैं, ऐसा समझाते तो कपड़ा ठीक रहता है। हम पेरिस में गए थे तो जहाँ हम सब सवेरे नाश्ते जिसके घर में कर रहे थे, उसके घर में प्लम्बर आया, साफ वाफ किया, फिर हम लोग को टेबल बैठ के हम लोग साथ चाय पीने लगा। कभी नहीं कोई पूछा। अगर शौचालय को साफ करना ही है, चाहे मशीन से करे, चाहे हाथ से करे, चाहे जैसे करे, किसी न किसी को करना है। चाहे वो हमारी माँ करे, चाहे हमारी पत्नी करे, चाहे घर वाले करें, चाहे हम करें। लेकिन इसको अपमानित जब किया गया तो आपका समाज गंदा हो गया। आपका समाज गंदा हो गया। एक दलित पैदा हो गया जैसे कि जो समाज का नसूर हो गया। आपके कॉन्सेंस के ऊपर धक्का हो गया कि एक समाज, हमारी माँ, हमारी बहनें, अच्छा उनके ऊपर हम सर पर बोझ डाल कह दिए कि आना नहीं तुम। इतना बड़ा अपमान। तो ये कहा गया, बात बढ़ी। क्यों बात बढ़ी? कि जितने गरीब मुल्क थे ये सब गांव में रहते थे, सब शहर में आने लगे। जब शहर में आने लगे तो जिनको शौचालय चाहिए, उनको मकान चाहिए, उनको पानी चाहिए। गांव में तो नहीं था। गांव में कुआं में निकाले पानी, अपना खाने पीने लगे। जब यहाँ आया तो बात बड़ी। पहले हम लोग की बात कौन सुनता था? अरे गरीब है, हाँ तब सोचते हैं, कौन सोचता है? लेकिन अब तो सुनने लगे, इसलिए कि हमारे हाथ में पैसा हो गया, हमारे हाथ में मोटर हो गई, हम अंग्रेजी बोलने लगे, हम फूट पड़ते। अरे ये कौन है? ये तो जब बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, कोई बहुत बात बोल रहा होगा जरूर। जब वो भी बोल, जो उषा चमर भी बोल रही है, वो भी बैठ के ताली बजाए, तब कहने लगे पावर सेंटर उसके यहाँ चला गया, हम लोगों से हटा के उसको बनाया गया। मित्रों, बच्चों, सुलभ आंदोलन का जन्म ही इसलिए हुआ कि समाज के रिन्यूअल का काम करें, समाज के उद्धार का काम करें। सबसे पहले गांधी जी ने इसे शुरू किया था। जब कलकत्ता सेशन में 1935 में वो खुद हाथ से शौचालय साफ किए। उसके बाद गांधी जी के बाद तब उनसे लेके डॉक्टर पाठक शुरू किए कि इन लोगों को उठाओ, इन लोगों को मदद करो, हमारा समाज इनसे गिना जाएगा कि ये कहाँ। मित्रों,
समाज जो उठता है, एक गरीब को, नीचे वाले बैठे हुए आदमी को आप उठाइए, पूरा घर उठ जाएगा, समाज उठ जाएगा। ऊपर वालों को उठाएगा तो परिवार वाला उठेगा। तो सुलभ ने डॉक्टर पाठक ने समाज को नीचे से उठाने की बात की। कहा जहाँ हमारा चैलेंज है, जहाँ हमारा समाज है, जहाँ हमारी माँ बनी, वहाँ से चले। आंदोलन इसलिए हम लोगों की विशेष आंदोलन है। तब से जब बाहर उठा तब अमेरिका विलायत वाले सोचने लगे कि अरे भाई पैखाने में भी पैसा है। जैसे आपने कहा ना कि टॉयलेट फॉर जॉब, आप टॉयलेट बनाएंगे तो नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी मिलेगी तो पैखाना नहीं बनेगा। ये नौकरी इसलिए बताया गया कि अगर नौकरी नहीं मिली तो शौचालय नहीं बनेगा। हमारा आपका डॉक्टर पाठक का ये था शौचालय बनाया, ये कौन से हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा धर्म था, हमारा इसका करना ही था। तो ठीक है। अब जब बढ़ गई तो अमीर लोग कैसे समझे कि शौचालय ज़रूरी है। कहा कि नहीं, अगर शौचालय बनेगा तो पैसा मिलेगा। तो सब कहा, लड़के ने कहा कि बनाइए, खूब पैसा पाइए। सुलभ शौचालय अकेले बना के चले। आज सुलभ में 50,000 आदमी काम करते हैं। 50,000 आदमी काटे, मोटर गाड़ी वाले करते हैं, वो लोग करते हैं जो कि कभी देखते नहीं, अपमान की तरफ देखते हैं। बच्चों, हम लोग की दुनिया तो ख़त्म हो गई। हम लोग आपसे इसीलिए मिलते हैं कि हम जो दुनिया छोड़ कर जाएंगे वो देखेंगे कि हमारी बात कहीं न कहीं सुनी जाए। इसीलिए हम लोगों से आप से जल्दी बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं कि हमारी बात जो अच्छी बुरी थी तो रही, लेकिन बच्चे तुम लोग सुनना, जिस दुनिया को तुम लोग बनाओगे वो बड़ी अच्छी दुनिया थी, बड़ी अच्छी दुनिया होगी। हम लोग की गरीबों की दुनिया थी। आप में न्याय अन्याय का ज्ञान होना चाहिए। क्या हर जगह पैसा ठीक है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा से दुनिया नहीं चलती। परिवार पैसे से नहीं चलता, परिवार तो प्यार मोहब्बत से चलता है। देश जो है देश चलता है प्यार मोहब्बत से चलता है। हमको प्यार मोहब्बत से सिखाना। आज डॉक्टर पाठक किसी से पैसा नहीं लिया, सड़क साफ किया, शौचालय साफ किया, शौचालय बनाया, सिफारिश किया। इतने लोगों को एक साथ जुटाकर एक बात कहने के लिए सिर्फ एक ही बात कहा जा रहा है कि शौचालय बनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपने बच्चों को हाथ धोना सिखाइए। सीधी सी बात कि इसलिए कि जितनी बीमारियां बच्चे तुमको होगी उसमें से 50% बीमारी ऐसी होगी इसलिए कि आप साफ नहीं रह रहे। उसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। हमारी माँ हम लोगों को सिखाया करती थी, गांव में जब हम लोग कच्चे मकान में रहा करते थे कि खाने को पानी से धोया जाएगा। आप जब आइए हाथ धो के आइए, भगवान का हाथ धो के प्रणाम करके आइए, जाके वहाँ जाइए। तो उस वक्त तो ये दुनिया नहीं थी, ये पैसे वाले दुनिया नहीं, लेकिन सफाई था, दिमाग में सफाई था। वो गांव की माँ बैठने आपको बैठने नहीं देती थी जब तक कि आप हाथ नहीं धो के आइएगा, जब तक पूछ नहीं आइएगा। तमाम बातें जो आज अंग्रेजी में कही जा रही ये सब आपके हमारी माँ ने कहा। उसका जो कुछ नहीं था, इसलिए कि हमारी संस्कृति में हमारी सभ्यता थी, मानवता भरी हुई थी। सफाई जो है मानवता किसका सवाल है। सुलभ के लिए सफाई पैसे का सवाल नहीं उठाता। इसीलिए मोदी के आंदोलन में सुलभ के आंदोलन में फ़र्क है। आप ये कहिए कि हम शौचालय बना दें, सड़क बना दें, लड़के जाएँ पढ़ें, ठीक है, अच्छा लोग पढ़ें, लेकिन कभी उन्हें वो नहीं कहा कि जो शौचालय से लगे हुए सफाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। उनके बारे में भी एक शब्द बोल दिए होते मन भर गया होता। ये तो काम बनाने के लिए नहीं तो काम तो हो गया। इसलिए सुलभ के साथ पैसा आ गए, हम सब लोग जुड़ गए। हम सब लोग दूसरे पेशे में थे, आके कहने लगे अरे भाई शौचालय बड़ा अच्छा है। इसलिए अच्छा नहीं कि हम चाहते हैं अच्छा है, इसलिए अच्छा कि पैसा है। जब पैसा नहीं था तो हम अच्छा नहीं मुस्काए। तब तो हम लोग जो शौचालय दफ्तर में जाते हैं सब कहते अरे पैखाना वाला आ गया। आप तो कहते हैं अरे साहब आइए साहब, थैंक यू वेरी मच, आइए। क्यों? इसलिए नहीं कि हम शौचालय से प्यार हो गए, इसलिए कि प्यार को पैसे से हो गया। संस्थापक ने इसको
पैसे से जोड़ा है, इसको सम्मान से जोड़े, इसको मान सम्मान से जोड़ा है। अब जब जैक्सिम एक अमेरिकन था जो कि सिंगापुर में रहता था, उसने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और सिंगापुर ऐसा है कि दुनिया के सबसे बड़े 2, 4, 10 देशों में वो है। तो उसने पूछा कि शौचालय का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा एनीथिंग व्हाट यू कैन नॉट डिस्कस यू कैन नॉट इम्प्रूव। अगर किसी चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। हम लोग डिस्कस नहीं करते थे, मीटिंग में बोला नहीं जाता था, ये कहीं नहीं पूछता था कि शौचालय कहाँ है। सब उससे कोई अंगी उठाता था, कोई ये करता था, कोई वो करता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। टॉयलेट लिखा नहीं, आज भी नहीं लिखा जाता टॉयलेट, लिखा था पब्लिक कन्वीनियंसेस। कन्वीनियंस तो कपड़ा बदलने के लिए है, ये टॉयलेट नहीं लिखा जाता। इट हैज़ नॉट बिकम रिस्पेक्टेबल वर्ड। फ्रांस में लिखा जाता है, अमेरिका में लिखा जाता है, हमारे यहाँ अभी एक पब्लिक कन्वीनियंसेस। कन्वीनियंसेस मतलब कि आप खाइए पीजिए उठ के और चीज़ शेयर करिए। मित्रों, हमको उस टॉयलेट को रिस्पेक्टबिलिटी देना है। हमको ये देना है कि हम शौचालय काम करेंगे, कुछ उम्र हम लोग क्या रहेंगे, आप रहेंगे, जो काम करेंगे सो करेंगे, उसको मान सम्मान देना है। मित्रों, आज का दिन बड़ा ज़रूरी दिन है, इसलिए कि आज के दिन ये किया जाता है, दुनिया को पहुंचाया जाता है, कहा जाता है शौचालय ज़रूरी है, एक मिशन है, एक मनुष्य का ह्यूमन राइट्स है। डॉक्टर ने कहा, ये डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका ह्यूमन राइट्स है। बच्चों, तुम्हारी दुनिया बड़ी गजब होने वाली है। हम लोग तो अपनी दुनिया को जानते थे, आप नहीं जानते कैसे दुनिया में जिस किस्म से बढ़ रहे हैं, मशीन बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, मशीन के साथ वैल्यूज़ बढ़ते जा रहे। हम लोग को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने माँ बाप के सामने खड़े हैं। हमारे ऐसे पड़ोसी हैं, तो उनका लड़का जाके अमेरिका में बस गया, तो उनका आप तो बड़ा खुश हो गए, तुमको पैसा कह खुश कर। जब लड़का है, लड़के का लड़का जो है आता है, तो हम सोचते थे कि अपने पोते को उठा के बैठाएंगे, तो हमसे कहता वो चाय, वो हमको चाय कहता है। हम इसलिए जाने किए कि हमको बाबा का कि हमारी गोदी में बढ़ जाए, तो हम कहता वो चाय। हमने कहा लो, पैसा प्यार साथ साथ हमेशा नहीं चलता, ये तो होना पड़ेगा। आप शायद बन गए, पैसा तो है, पैसा देख कैसे, पैसा देख खड़े लोग सब नहीं में खड़े। पैसे जरूर कमाओ, लेकिन पैसे के साथ मित्रों अपने जीवन के संबंधों को मत हटाओ, जीवन के मूल्य को मत हटाओ। बच्चों को खूब पढ़ो, खूब सिखाओ, लेकिन उन चीज़ों को हमेशा ख्याल रखो जो पिछड़ गए, जो तुम्हारे जैसे नहीं है, जो हमारे जैसे नहीं है, उनका ख्याल करो। उनके साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाओ, सुरक्षित दुनिया बनाओ, अच्छे शौचालय बनाओ, स्वस्थ रहोगे, सुख रहोगे। हम लोग इसी चीज़ को लेकर हमेशा कहते हैं, इसी चीज़ को गा के कहता है, कभी सिनेमा देख कहता है, कभी भाषण देखकर, कभी हिंदी में कहता है, कभी अंग्रेजी में कहता है, लेकिन कहता है शौचालय। वही बात जो आराम में कहता है डॉक्टर पाटिल ने श्लोक के गड्ढे में खड़ा के कहा जाके 45 साल पहले, आवाज गए हैं वही बात पेरिस में करने। पेरिस में गए हैं, वहाँ गए फिर कोई कहाँ जाएगा और कहाँ जाए, कहा वही जा रहा है जो आराम में कहा गया था। इसलिए बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है, लव, काइंडनेस, साथ में रहने की आदत, अच्छे आदमी का मनुष्य, ये जो है हमारी संस्कृति है। विश्व आज हिंदू टॉयलेट दिवस इसलिए मनाया जाता है, जैसे लड़की में अच्छा होता है कि हम साथ जाने, इसको प्रायोरिटी करें, जॉब क्रिएट करें, पैसा क्रिएट करें, खूब करें। इसलिए समाज साफ हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, एक सुलभ का संसार बने, डॉक्टर पाठक के सपनों का संसार बने, हमारी आपकी दुनिया अच्छी हो, बच्चों वहाँ पर अच्छे रहें, और हम लोग देखते देखते फेज आउट हो जाए, आपको एक अच्छी दुनिया बनाते हैं। इससे बड़ी सुखी क्या। Thank you very much, sir, for your views. May I request Honorable Shri Samirendra Chatterjee, sir, to please come and share your experiences on sanitation.
और मेरे सभी वॉलंटियर साथियों, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि शौचालय की जो रिकग्निशन है वो पूरी दुनिया को दी गई है यूएन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन, जैसे कि आप जानते हैं, ये सारे राष्ट्रों का एक यूनियन है या कॉन्फेडरेशन है और यूएन ने 2011 में इसकी मान्यता दी और कहा कि साल में एक दिन जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी शौचालय के विषय में बहुत खोज हुआ है, काम हुआ है। सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम है ऑलरेडी कि महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, लेकिन उस समय जो है कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके द्वारा इसका हल किया जा सकता था, इसलिए उसको ढूंढना पड़ता था। हमारे फाउंडर साहब ने इस विषय को टटोला तो उनको ये लगा कि पहले सबसे जरूरी है कि एक टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे हम जो ह्यूमन वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सके बिना हैंडलिंग के और बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना दिक्कत के। और उन्होंने जो खोज निकाला वो 5000 साल तक जो नहीं हो पाया था वो एक आदमी ने कर दिखाया। और उनके इस एक खोज से, जो कि उस समय बहुत ज्यादा शायद रिकग्निशन नहीं मिला था, लेकिन इस एक खोज से जो है वो पूरी जो हमारी 5000 साल की प्रथा थी, ट्रेडिशन थी, वो बदल गया। स्कैवेंजिंग खत्म हो गई। कानून से सिर्फ स्कैवेंजिंग खत्म नहीं किया जा सकता था, कानून तो आया, लेकिन जब तक कोई टेक्नोलॉजी या तरकीब नहीं होता तो इसको खत्म कैसे करते। तो हमारे फाउंडर साहब की ये एक दुनिया को देन है कि उन्होंने ह्यूमन वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जा सकता है बिना ज्यादा खर्चे का, बिना हैंडलिंग का, बिना ट्रांसपोर्ट का, इसकी उन्होंने खोज दुनिया को दी। और उस खोज से एक पूरा सोशल अपहीवल हो गया, सोशल चेंज हो गया कि जो छुआछूत की जो हमारे यहाँ प्रथा थी 5000 साल से, और वो इसलिए कि कुछ लोग जो है इस गंदे काम को करते थे, बाकी लोग, जरूरी तो था किसी को करना, लेकिन जो करते थे उन बेचारों को अपने बराबर के नहीं मानते थे। लेकिन इस एक खोज ने वो सब खत्म कर दिया। अब जो पहले महिला ढोते थे, अब वो हमारे समाज के साथ इंटीग्रेट हो गए, वो हमारे समाज के दूसरे वर्ग जैसे बराबर हो गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका श्रेय हमारे फाउंडर साहब को जाता है। लेकिन उसके बाद यूएन ने 2011 में जब वर्ल्ड टॉयलेट डे डिक्लेयर किया तो इसकी मान्यता सबको मिली और लोगों में इसके बारे में चर्चा होने लगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में रेड फोर्ट से कहा कि हमें साफ सफाई चाहिए, तो ये हमारे पूरे देश में फैल गया और आम जनता में इसकी बहुत बहुत चर्चा होने लगी। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती थी, जिसके विषय में लोग छुपाते थे, शर्माते थे। लेकिन अब ये आम हो गया है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि चाहे वो 5 स्टार होटल्स हो, चाहे कोई बड़ा संस्था हो, सभी इसके बारे में चर्चा कर रही है, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, विदेशों में चर्चा हो रही है। तो ये एक बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ह्यूमन वेस्ट है, ये एक ऐसी चीज है जो गंदगी फैलाती है और बीमारी फैलाती है। और इसको साफ सफाई रखने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। देश की बात छोड़िए, अपने लिए सोचिए, आप अगर साफ सफाई में रहेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। और बीमारियों से बच सकने से क्या फायदा है कि आप जब बीमारी कम होगी तो आप अपने जो काम है, स्कूल में पढ़ना, पढ़ाई करना, कुछ बड़ा बनना, अच्छी नौकरी पाना, उसको आप आराम से पा सकते हैं। क्योंकि बीमारी नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छा करेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे। तो आप स्कूल के बच्चे के नाते यही सोच लीजिए कि मेरे लिए भी ये फायदेमंद है। और सब अगर ऐसा सोचेगा तो देश के लिए फायदेमंद अपने आप हो जाएगा। तो इसके फायदे हैं, इसके बारे में
खोज भी हुई है, कुछ लोगों ने खोज के निकाला है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सड़क, बिजली, पानी और ये पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह में जो खर्चा करते हैं, 1 रुपए खर्च करते हैं तो 4 रुपए का फायदा होता है। लेकिन अगर हमारी साफ सफाई में रहें हम लोग तो 1 रुपए खर्च करेंगे तो आपको 6 रुपए का फायदा होता है। यानी कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके फायदे ही फायदे हैं, आर्थिक फायदे हैं। और इस फायदे से क्या होता है, अब ये भी प्रतीत हो गया है कि अगर आप शौचालय बनाएंगे, साफ सफाई में रहेंगे तो एक तो आपका स्वास्थ्य का लाभ हो जाएगा और दूसरा तरफ जो है इससे नौकरी बढ़ेगी। कितने लोग, अब यही सोचिए कि 45 साल पहले जब सुलभ नहीं था तो ये 50,000 नौकरियां तो नहीं थी, काम में तो नहीं थी। जो आमदनी हो रही है 50,000 हमारे वॉलंटियर साथियों को, ये तो नहीं होता। तो 50,000 लोग, और अगर 4 या 5 आदमी भी जोड़े एक आदमी के साथ तो 2,500-3 हजार लोग जो है सुलभ के ऊपर चल रहे हैं। और ऐसे अगर और भी ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे तो कितनी नौकरियां हो जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, कहा जाता है कि 60% लोगों के पास अभी टॉयलेट नहीं है। कोई बड़ा संख्या नहीं है, क्योंकि 40 साल पहले ये 0% था। 40% लोगों के घर में कम से कम आ तो गया शौचालय, बाकी 60% जब इतना फोर्स हो रहा है तो 2-4 साल में आ जाएगा। और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है कि 2019 2 अक्टूबर तक सारे घरों में शौचालय होंगे। और ये कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है, हमारे फाउंडर साहब ने बता दिया है सरकार को भी और सबको बता दिया है कि ये अचीवेबल है, अचीव हो सकता है और कैसे हो सकता है। सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने एक तरीका भी दिखा दिया कि किस तरह से ये अचीव हो सकता है। और ये अगर अचीव हो जाएगा तो ये निश्चित है कि हम लोग जो देश, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उन्नतशील देश हैं, हम उनके बराबर में आ जाएंगे। हमारे यहाँ भी कोई गंदगी नहीं होगी। जब हमारे यहाँ पर्यटक आएंगे तो वो भी खुश रहेंगे। आजकल आपको मालूम है बहुत पर्यटक इसलिए इंडिया में नहीं आते हैं कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट्स नहीं है। तो आजकल मंत्रालय सारे लग गए हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सारे कोने कोने तक इसकी जो मैसेज है वो फैल जाए और हर जगह साफ सफाई में लोग रहें, खुशहाल बढ़ेगी, खुशहाली में रहेंगे और आमदनी भी बढ़ेगी। कितने मेसन्स एम्प्लॉय होंगे, कितने साफ सफाई के लिए लोग एम्प्लॉय होंगे, कितने जगह पे जो जहां अभी स्वच्छता नहीं है वहां पे जब साफ सफाई होने लगेगी, हर 2-3 घंटे में एक बार सफाई होने लगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारे देश में रोजगार की तो बहुत जरूरत है। इसलिए अगर हम सिर्फ सोशल एंगल से नहीं, अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और अभी जब जैसे आपको मालूम है कि डिमोनेटाइजेशन हो गया है, इससे कई लाख करोड़ जो लोगों के तिजोरियों में और पेटी में बंद रहते थे, बिस्तरे में रहते थे, के नीचे रहते थे, वो सब अब आके बैंक में आ जाएंगे। और बैंक में आ जाएंगे तो बैंक का काम क्या है, लोगों को ऋण देना, ब्याज दर कम हो जाएगा, लोगों को ज्यादा ऋण मिलेगा, लोग आसानी से टॉयलेट्स बना लेंगे। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि लोग अब डिजाइनर टॉयलेट भी बनाने लगेंगे अगर उनके थोड़ा सस्ता हो गया ब्याज वगैरह। तो मेरे हिसाब से तो हमारा देश का भविष्य जो है बहुत उन्नत है। हमें बहुत खुशी है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम करने का मौका मिला है जिस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर साहब एक इंटरनेशनल फिगर हैं। इंटरनेशनल आजकल तो ऐसा है कि उनके लिए कोई भी अगर अवार्ड मिलता है तो वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको सब कुछ तो मिल चुका है। चाहे वो रिकग्निशन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे आदर हो, सब कुछ उनको मिल चुका है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। जो महान लोग होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। पहले उन्होंने शौचालय का किया, शौचालय के बाद फिर पानी का किया, अब पानी के बाद और भी आगे की सोच रहे हैं। तो उनकी तो सोच ही अलग है, तभी वो महान है। लेकिन हम लोगों का ये फायदा है कि हम लोगों को एक मौका मिला है इनके साथ जुड़ के काम करने का और हमारे देश के जो प्रगतिशील होने का वो है उसके साथ में थोड़ा बहुत योगदान करने का। आइए हम लोग आज के दिन फिर से रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम अपना पूरी जी जान लगा के इस वर्ल्ड टॉयलेट डे की जो मर्यादा है उसको रखेंगे और साफ सफाई के काम में बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे और अपना पूर्ण योगदान करेंगे। यही हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा स्वच्छता के विषय में। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग यहाँ आए और हम लोग सब मिलकर इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
And now may I request Srimati Usha Chawar ji to please come and share your views with us. उपस्थित सभी लोगों को और बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम टॉयलेट डे मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये हमारे लिए बेकार था पहले, क्योंकि जब मैं खुद इस काम को करती थी मेला डोने को, तो मुझे बहुत घिनौना काम मिला था, मुझे बहुत गलत लगता था। लेकिन क्या करें, वो मजबूरी थी हम लोगों की वही काम करने की, मेला डोने की। तो देखिए, सबसे भी ज़्यादा डॉक्टर पाठक जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज अगर वो सच में टॉयलेट नहीं बनाते पक्के, तो आज मैं आपके सबके बीच में कभी खड़े नहीं होती। क्योंकि हम लोगों का काम इतना गंदा था मेला ढोने की वजह से, क्योंकि कच्चे टॉयलेटों की वजह से हमको बहुत अपमान भी सहना पड़ता था। क्योंकि मैं खुद इस काम को पहले करती थी, मैंने 2003 से काम छोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले मेला ढोने का मैं काम करती थी। जब ये कच्चे पखाने थे तो मुझे बहुत समस्या होती थी। लेकिन अब हमारे साहब ने क्या करा, वहाँ पर हमारे अलवर में, राजस्थान में, वैसे तो सभी जगह उन्होंने पक्के प्लेस बना दिए, तो कहीं पर भी काम नहीं होता मेला ढोने का। लेकिन हमारे जो राजस्थान में हम लोगों को जो अपमान की जिंदगी हम लोगों को सहनी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने आज वहाँ पर सबों के घर पक्के शौचालय बना दिए। अब ना ही तो वहाँ पर कच्चे शौचालय हैं, ना ही कोई वहाँ पर काम करता है। अब देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैंने बहुत ये काम करते हुए बहुत समस्या सही है। तो मैं मेरे साहब को बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको बार बार, क्योंकि पहले हम जब मेला ढोते थे तो हमको जैसे कि उनके घरों में जाते थे तो बहुत मुझे अपमान सहना पड़ता था। जैसे कि गर्मियों के टाइम में आपको पता, पानी की प्यास लगती है, जबकि हम मेला ढोते थे तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से जैसे पानी पिलाते हैं, ऊपर से वो खाना देते हैं, जैसे पैसे फेंक के देते थे। तो ऐसा उन लोगों का व्यवहार था। लेकिन क्या कर, मजबूरी थी, तो भाई पता नहीं हमारा तो किस तरह से भाग्य पलटा और डॉक्टर पाठक जी हमारे जीवन में आए, एक भगवान बन के आए। देखिए, कहते हैं ना कि भाई एक भगवान होते ऊपर, लेकिन हमने तो भाई यहीं देख लिया भगवान, क्योंकि जिन्होंने हमारी जिंदगी इतने अच्छे से बदली है, जो कि हमको कभी अपने घर में नहीं बुलाते थे, कभी अपने पास नहीं बिठाते थे वो लोग, लेकिन आज हम उनके साथ बैठते हैं, उनकी शादी में जाते हैं, उनके विवाह में जाते हैं, लेकिन कोई हमें भेदभाव नहीं करता। तो बहुत ये अच्छा लगता है। क्योंकि पहले जब मेला ढोते थे तो कहते हैं गांधी जी का और मोदी जी का यही है सपना है। तो हमारे डॉक्टर पाठक जी तो इसमें 40-45 वर्षों से लगे हुए इस कार्य में, साफ और शौचालय के बारे में। तो हम तो उनको भगवान मानते हैं, गांधी जी मानते हैं मैं तो, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी गांधी जी तो देखे नहीं, देखे तो डॉक्टर पाठक जी ने मैंने तो देखा। अगर वो टॉयलेट नहीं बनाते तो देखिए, जब हम कभी वहां पर रहते थे उस गांव में, अलवर राजस्थान में, तो हम लोगों को जैसे कि कहते हुए सुबह सुबह उठना पड़ता बहुत जल्दी, और जैसे कि शाम को जब दिन छिप जाता, अंधेर हो जाता, तब लेट से बाहर निकलते हैं। तो हमको बहुत ही समस्या होती थी पहले। तो अब सबके घरों में शौचालय बनवा दिए साहब ने। जैसे कि स्कूलों में, मेरी बेटी पहले स्कूल जाती थी तो वो लड़की मेरी 2-3 घंटे के बाद घर आती थी। तो मैं कहती, बेटा कितनी देर आप स्कूल जाते हो, कितनी देर पढ़ाई कर पाते होगे? तो वो कहती, मम्मी वहाँ पर टॉयलेट नहीं, 1-2 टॉयलेट है, तो हमारे टीचर वगैरह जाते, वो लोग कर देती थी पहले। तो हम कहाँ जा, खुले में जाना पड़ता, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो साहब ने वहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में शौचालय बनवा दिए। अब ना तो हमें परेशान है, ना हमारे बच्चों को। हम बिल्कुल बढ़िया तरह से जिंदगी, जैसे कि आप लोग सब जी रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी जी रहे हैं। क्योंकि जब मैं पहले मेला ढोती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, मैं बहुत रो रो के जीती थी पहले। लेकिन अब जब से मैं सुलभ में आई मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मान सम्मान की जिंदगी मैंने जी है। जितना मैंने कहीं मेला ढोती और अपमान सहा था, उससे कहीं ज्यादा मुझे सुलभ में सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कि अब वो पंडित थे पहले, लेकिन अब तो हम भी पंडित हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर पाठक जी ने हमें भी पंडित बना दिया। पहले हमारी ड्रेस थी जैसे कि ब्लू ड्रेस थी पहले हमारी, लेकिन आज देख लो हम पीली ड्रेस पहन के खड़े आपके सामने, तो हम पंडित हो गए। क्योंकि पहले जब मेला ढोते थे तो हम लोगों से सब मतलब छुआछूत करते थे, भेदभाव करते थे। और हमारे साथ इतने अच्छे डॉक्टर पाठक जी, इन्होंने खुद स्वयं मेला ढोया था आरा में। तब हम रोने लगे थे कि सर हमने तो खुद ने मेला ढोने का काम करा था, क्योंकि मैं 7 साल की थी तब से मेला ढोने का काम करती, मम्मी के साथ जाते थे। तो हम जब साथ मेला ढोने का काम कर रहे थे तो हमारे तो आंखों में आंसू आ गए।
कि सर हम क्या कम थे मेरा ढोने के लिए, हमने तो काफी साल ये सहा है, लेकिन आप तो मत ढोइए। तो वो कहने लगे कि मैं आपकी पीड़ा सहना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जब आप इतने वर्षों से काम करो तुम लोग सब, तो मुझे 2 दिन मेला ढोने जब ढोया था तो मुझे कैसा लगा था, क्योंकि बहुत ही गंदा काम था, बहुत ही अपमान का जिंदगी थी जीने के लिए। लेकिन हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छे, जिन्होंने हमको आपके साथ खड़ा कर दिया। अब तो हम देश विदेश भी जाते हैं और सबसे बात भी करते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि सबको समझाते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि भाई कोई गाँव हो शहरों में सब जगह कहती हूँ कि भाई सब जगह टॉयलेट होने चाहिए, क्योंकि जैसे लड़कियों को लेडीजों को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ हर घर में शौचालय होने चाहिए, उनको साफ सफाई से रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं भी टॉयलेट बना तो देते हैं लेकिन वो गंदा रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी जगह टॉयलेट साफ रहना चाहिए। जैसे कि हम अपने शरीर को साफ रखते हैं उसी तरह से शौचालय को भी साफ रखना चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया और हमको पंडित ही बना दिया। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश बोल देती हूँ, थोड़ा सा आपको मंत्र बोल के सुना। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून all of you. My name is Usha Chomar. I live in Alwar, Rajasthan. I get up early in the morning. I am from Naidisa Sulab International Social Service Organization, Alwar, Rajasthan. Our founder's name is Dr. Bindeswar Patel. We come to our center 8-9 a.m. Then we all attend the prayer. Then we go to our adult education class. Then after we all do our work, cutting and embroidery, boutique wear, make some jute items, vermicelli, pickles, candles, snacks. Our preparation is supplied to Alwar, Tijara, Delhi, and we wish the name of our organization become high. Thank you. अब आपको थोड़ा सा आपको मंत्र बता देती हूँ। तो हम पंडित बन गए ना, तो थोड़ा बहुत मंत्र आपको सुना देती हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणी नमः, ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचेतानव संसिमरे नित्यं वेदवाणी पर्वत्ये नमस्ते शारदे देवी कास्मिन् पूर्वासिनी त्वां प्राप्त्यं नित्यं विद्यादानं च देहि मे कर्पूरि गौरविकर्णावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये अरविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव शरणं मम देवि दैवम्। ॐ सेना भवतु सेनो भुनक्तु सेवीरे कर्वावै तेजस्विनावधीतु नमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अहं ब्राह्मणा अस्मि। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for showing your multi-talent. Now it's time to felicitate children who had participated in various events. For this, I would request Shivangi to please call out the names of achievers. Hall on 25th April 2016 under the dialogue on sanitation and dignity titled Interface. I would like to call Honorable Shri S.P. Singh sir to please give away the prizes.
यहाँ देखना, यहाँ यहाँ दे लो, हाथ पकड़ो इसको, पकड़ो। रुको रुको, पकड़ लो उसको। यहाँ देखो, यहाँ Request Honorable Shri Samrendra Chatterjee sir and Shri S.P. Sinha sir to please be on the stage. यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, यहाँ सर, यहाँ सर, यहाँ देखो। ये Third prize goes to Modern Convent School. सर, यहाँ Please give them a huge round of applause. बस यहाँ देख सर, यहाँ देखिएगा। हाँ सर, यहाँ देखो। Please give her a huge round of applause. सर, यहाँ यहाँ देखो। सर, Please यहाँ give him a huge round of applause. Give him a huge round of applause. यहाँ यहाँ Please give her a huge round of applause. यहाँ देखिए। Please give her a huge round of applause. Among us, two very important guests from London, UK. So we want to welcome you in our campus with our traditional way of welcoming with a shawl and a garland. I request S.P. Singh sir to kindly come to the dais for their welcome and Srimati Usha Chaumarji for welcoming. International Water and Sanitation from Greenfield University, UK. Please come on the dais. We want. And we have Honorable Dr. Rachel L. Gomes. She is Associate Professor, Canada, United Kingdom.
Now I request SP Singh sir, our chairman of Sulabh International Social Service Organization, to kindly give a few words in their honor. Madam, possibly you do not know. Possibly you do not know. Everything is started from written. You know, all modern scientific, everything which is rational, it all is started from you. Because industrialization is started. And with industrialization came rationalism. Huntington, the first flush system was invented in 15. Toilet was made. Sanitation evolution followed all over the world. Business, smartphone, now, so many things. May give me, give me time, I can give you a long list of everything. This is why I was pleased to thank you. Many contributions that you made to the civilization. Because toilet is the symbol of civilization. Man became civilized when you invented him twice. Because the Queen's palace. Read that. Because we know about the great things about the war, about the drums, about the master, but these are small things which make you. You are professional. You are leading intellectual life. You are going to lead the people to think of rationally. So, we have children, I would like you to give a long hand to our wishes for this coming year. And a good feeling in Britain. Now we are Department of Sulabh along with Sulabh Public School. First presentation is a Qawwali, Modi Ka Sapna Bana Liya Apna, by the Music Department of Sulabh. Please give a huge round of applause for them. बना दिया अपना मोदी का सपना बना दिया अपना पूरे देश को साफ रखना मोदी का सपना बना दिया अपना मोदी का सपना बना दिया अपना पूरे देश को साफ रखना मोदी का सपना बना दिया अपना मोदी का सपना बना दिया अपना पूरे देश को साफ रखना मोदी का सपना बना दिया अपना
तालियां बजाकर, जो चाहते हैं कि मोदी जी का सपना पूरा हो, हमारा सपना पूरा हो, हमारे देश का सपना पूरा हो, हमारे सर का सपना पूरा हो, और सभी का साथ देना है। मोदी का सपना बना लिया, मोदी का सपना बना लिया, पूरे देश को साथ रखना, मोदी का सपना बना लिया, मोदी का सपना बना लिया, पूरे देश को साथ रखना। मोदी जी का हुआ इशारा, 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 देश बनेगा सुंदर सारा, देश बनेगा सुंदर सारा, कोई ना ऐसा विद्यालय हो, बनाना जिसमें शौचालय हो, बनाना जिसमें शौचालय हो, टीचर छात्र रखेंगे सफाई, टीचर छात्र रखेंगे सफाई, मोदी जी ने राह दिखलाई, मोदी जी ने राह दिखलाई, लड़की बिटिया प्यारी प्यारी, लड़की बिटिया प्यारी प्यारी, जाएगी स्कूल हमारी, जाएगी स्कूल हमारी, पढ़ लिख कर वो बड़ी बनेगी, पढ़ लिख कर वो बड़ी बनेगी, रोशन देश का नाम करेगी, रोशन देश का नाम करेगी, देश को हम सब साफ रखेंगे, देश को हम सब साफ रखेंगे, देश को हम सब साफ रखेंगे। मोदी का सपना बना लिया अपना, मोदी का सपना बना लिया अपना, पूरे देश को साफ रखना, मोदी का सपना बना लिया अपना, मोदी का सपना बना लिया अपना, पूरे देश को साफ रखना। गंगा को मैली करने का, हमने कैसा पाप किया है, मोदी जी ने अपने हाथों, खुद गंगा को साफ किया है, 80 घाट की किस्मत चमकी, गंगा बहती दमकी दमकी, कभी ना हो फिर गंगा मैली,
चूल्हे में कभी न करना, इससे बढ़ती है बीमारी, हम पर हंसती दुनिया सारी, गंदे पन का रोग मिटाओ, बीमारी को दूर भगाओ, अपने देश की शान बढ़ाओ, घर घर शौचालय बनवाओ, माँ बहनों की लाज बचाओ, बाहर शौच न करने जाओ, घर घर शौचालय बनवाओ, सुलभ मंत्र देकर हम सबको, हम भारत को साफ रखेंगे, हम भारत को साफ रखेंगे, हम भारत को साफ रखेंगे। एक बार सभी ने मिलकर हमारा साथ देना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आप सभी सबसे, एक बार सभी ने जो चाहते हैं मोदी जी का सपना पूरा हो, हमारे फाउंडर सर का सपना पूरा हो, सभी ने दिल से और अच्छे मन से जोश से बोलना है, मोदी का सपना पूरा दिया, मोदी का सपना पूरा दिया, पूरे देश को साथ रखना, मोदी का सपना पूरा दिया, मोदी का सपना पूरा दिया, पूरे देश को साथ रखना। Our next program is again a Kawali, Kuda na Feko, Kachra na Feko by the students of Sula Public School. Karo ji
Now I request Mrs. all members of Sulabh School Sanitation Club for organizing this event on a very special day of World Toilet Day. And as we all know that Sulabh School Sanitation Club has been leading school sanitation and hygiene education in India for more than 12 years. It is also working extensively to promote the menstrual hygiene management in schools. And I want to thank profusely to the children who participated enthusiastically today morning in all events conducted by the Sulabh School Sanitation Club. And I thank all of them for exhibiting their great talent. I would also like to thank all respected speakers for delivering inspiring words and believe children would follow these in their future course. And in the end, I would like to thank Samiksha also for conducting this event single-handedly and for putting all her efforts for the success of this program. And I also thank Suresh ji and Jyoti sir for organizing, for putting their efforts for organizing this program. Thank you very much. And now I request all of you to kindly stand erect for the national anthem. Okay? After that, you are all invited for lunch.